Hello students, once again welcome to my lecture of topic trigonometric function, and in this lecture we are going to see the general solution of trigonometric equation. Last lecture में हमने देखा था principal solution of trigonometric equations, उसके काफ़ी सारे important problems भी हमने solve किए हैं. Now from this lecture we will discuss the general solution of the trigonometric equations. So before starting, students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. तो चलिए start करते हैं general solution of the trigonometric equation. Definition आप सबको पता है. General solutions are the solutions of the trigonometric equation which are generalized by the periodicity of trigonometric function. Trigonometric functions के periodicity से generalize हुए हुए solutions को हम कहते हैं general solutions, and these general solutions are infinite in number. काफ़ी सारे solutions आप इससे निकाल सकते हैं by using the integer n belongs to z. So these general solutions are infinite. काफ़ी सारे general solutions होते हैं. So see, these are some important trigonometric equations and their general solutions. So this table is very important. First we will discuss this table. I have these two groups. दो ग्रुप में मैंने जनरल सोल्यूशन के फॉर्मूलेस को डिवाइड किया है. दिस इज़ माय फर्स्ट ग्रुप. तो इनके इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और उनके जनरल सॉल्यूशंस. तो देखिए, पहला आपको इक्वेशन दिख रहा है साइन थीटा इक्वल टू 0. So why the solution, general solution of sin theta equal to 0 is theta equal to n pi. Why the general solution of sin theta equal to 0 is theta equal to n pi. So if we put n equal to 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2 कोई भी इंटीजर आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको थीटा क्या मिलेगा? यू विल गेट थीटा इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई या -पाई मिलेगा, -2 पाई. अब इन सभी थीटास को मैं अगर इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे आंसर 0 ही मिलेगा. साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन ऑफ 3 पाई 0, साइन ऑफ -पाई 0, साइन ऑफ -2 पाई 0, साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई, either it is even or odd, then sin of theta will be equal to 0. Therefore general solution of sin theta equal to 0 is theta equal to n pi, and you know this general solution very well. इस ये सबसे आसान फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन का. नेक्स्ट हम देखते हैं cos थीटा इक्वल टू 0. सेकेंड देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है मेरा cos थीटा इक्वल टू 0 और उसका जनरल सॉल्यूशन होता है 2n + 1 π/2, 2n + 1 इंटू π/2. यहाँ पे 2n + 1 रिप्रेजेंट ऑड इंटीजर, 2n + 1 रिप्रेजेंट ऑड इंटीजर. सो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, थीटा अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो उसके लिए कॉस की वैल्यू 0 होगी. इफ़ वी पुट n इक्वल टू 1, 2, 3 और एनी इंटीजर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिए. सो इफ़ यू पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं. 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 लिए तो n इक्वल टू π/2, कॉस ऑफ π/2 0 होता है. 1 लेंगे तो 3 π/2, कॉस ऑफ 3 π/2 0 होता है. 2 लेंगे तो 5 π/2, कॉस ऑफ 5 π/2 0 होता है. 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 7 π/2, कॉस ऑफ 7 π/2 0 होता है. तो इस तरह से जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 0 इज 2n + 1 π/2. नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन इज tan थीटा इक्वल टू 0. उसका भी जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n pi है, क्योंकि tan theta is sin theta upon cos theta, and tan is 0 if sin is 0. Tan is 0 if sin is 0. Therefore general solution of sin theta equal to 0 and tan theta equal to 0 is same. So these are some important trigonometric equations. See the next. अगर मेरे पास इक्वेशन है sin theta equal to 1, sin theta equal to 1 है तो थीटा क्या क्या होगा? What is the general solution of this trigonometric equation? तो हम sin के लिए देखते हैं. साइन के लिए हम ऐसा इस तरह से ध्यान में रखते हैं 0 0 1 -1, साइन 0 0, साइन ऑफ π/2 1, साइन ऑफ पाई 0, साइन ऑफ 3 π/2 -1, साइन ऑफ 2 पाई 0. तो 1 यहाँ पे एंगल कौन से एंगल आते हैं फॉर विच द वैल्यू ऑफ साइन इज 1. सो हियर आर द एंगल्स π/2, यहाँ पे 3 π/2, फिर से यहाँ पे आएगा 5 π/2, यहाँ पे आएगा 7 π/2, तो यहाँ पे आएगा 9 π/2. अब देखिए, साइन ऑफ π/2 1,
sin of 5 pi by 2 1, sin of 9 pi by 2 1. So multiples of pi by 2 are 1, 5, 9. So these multiples are denoted by 4n plus 1 into that angle pi by 2. So general solution of sin theta equal to 1 is theta equal to 4n plus 1 pi by 2, n equal to 0 pi by 2, n equal to 1 5 pi by 2, n equal to 2 9 pi by 2. So therefore general solution of sin theta equal to 1 is theta equal to 4n plus 1 pi by 2. Now नेक्स्ट इक्वेशन इज साइन थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा क्या होगा, जनरलाइज्ड फार्मूला, तो ये साइन की वैल्यू -1 कौन से एंगल पे आती है, 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 5 पाई बाई 2, फिर से आएगा 7 पाई बाई 2, ऊपर 9 पाई बाई 2, यहाँ पे फिर से आएगा 11 पाई बाई 2. सो दिस मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 3, 7, 11 या माइनस पाई बाई 2 भी ले सकते हैं. अगर मैं इस डायरेक्शन से एंगल मेजर करता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो माइनस पाई बाई 2. तो यहाँ पे जो मल्टीपल्स है पाई बाई 2 के, वो मल्टीपल्स है 4n - 1 इंटू दिस एंगल पाई बाई 2. देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू -1 इज 4n - 1 पाई बाई 2, n इक्वल टू 0 माइनस पाई बाई 2, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज -1, n इक्वल टू 1 लीजिए, 3 पाई बाई 2, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 -1, n इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कीजिए, 7 पाई बाई 2, साइन ऑफ 7 पाई बाई 2 -1. तो इस तरह से आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिलेंगे. नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू -1, उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इक्वल टू -1, इसके हमें जनरल सॉल्यूशन देखने के हैं. तो कॉस देखिए, कॉस, तो कॉस के वैल्यूज़ हम किस तरह से ध्यान में रखते हैं. What is the rule for cos? Cos is 1 - 1 0 0, right? 1 - 1 0 0, cos of 0 1, cos of pi by 2 0, cos of pi -1, cos of 3 pi by 2 0, cos of 2 pi 1. अब cos 1 कहाँ पे आता है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ के एंगल्स क्या क्या हैं, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, यानी सारे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑल इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई. तो थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई, n इक्वल टू 0, थीटा इज 0, cos 0 1, n इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 2 पाई, cos ऑफ 2 पाई 1, n इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4 पाई, थीटा इक्वल टू 4 पाई, cos ऑफ 4 पाई 1. सो जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 2n पाई, और cos थीटा इक्वल टू -1 इज थीटा इक्वल टू ऑड पाई. ये इवन पाई, cos थीटा इक्वल टू 1 इक्वल है तो थीटा इक्वल टू इवन पाई, cos थीटा इक्वल टू -1 है तो थीटा इक्वल टू ऑड पाई. ऑड पाई क्या होता है, 2n + 1 पाई. सो हियर यहाँ के एंगल क्या क्या हैं, पाई हैं, 3 पाई हैं, 5 पाई हैं, तो ये सभी एंगल्स यहाँ से मिलेंगे. n इक्वल टू 0 पाई, n इक्वल टू 1 3 पाई, n इक्वल टू 2 5 पाई. सो cos ऑफ थीटा इक्वल टू -1 का जनरल सोल्यूशन होगा theta equal to 2n + 1 into pi. So these are the general solutions of some important trigonometric equation, and I think one more is there, cot theta equal to 0. तो इसका भी आपको काम पड़ सकता है. तो जैसे मैंने tan थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई लिखा है, बिकॉज tan इज 0 इफ sin is 0, देयर फॉर दिस sin and tan हैज सेम जनरल सोल्यूशन. अब cot इज 0 इफ cos इज 0, क्योंकि कॉट होता है कॉस बाय साइन. कॉट कब 0 होगा, जब कॉस 0 होगा, तो इसलिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड कॉट थीटा इक्वल टू 0 इज सेम. तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा 2n + 1 पाई बाई 2. अगर आप पूछेंगे सेक थीटा इक्वल टू 0 और कोसेक थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा. सो देयर इज नो जनरल सॉल्यूशन फॉर sec theta equal to 0 and cosec theta equal to 0, because sec theta and cosec theta are never in between -1 to 1. So sec theta and cosec theta are always 1 and greater than 1, -1 and less than -1. Therefore there is no solution of sec theta equal to 0 and cosec theta equal to 0. So this is my first group. अब second group देखते हैं. In the second group OB formula is important है. These formulas also are very important. So in the next group I have the trigonometric equation sin theta equal to sin alpha. Sin theta equal to sin alpha, उसका जनरल सॉल्यूशन देखिए. See the general solution of trigonometric equation sin theta equal to sin alpha.
तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फा। तो ऐसा क्यों होता है? वाई द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। सो दिस साइन थीटा माइनस साइन अल्फा will become 0 at sin theta equal to sin alpha. This is sin c minus sin d. इसको फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज करेंगे 2 cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0. दिस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, या फिर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0. कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन अभी हमने देखा है 2n प्लस 1 पाई बाई 2. जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 0 2n प्लस 1 पाई बाई 2. तो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बनेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और ये साइन थीटा इक्वल टू 0. सो साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? ये थीटा एंगल है इक्वल टू व्हाट? n पाई. सो दिस इज थीटा हियर. तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो थीटा मुझे क्या मिलेगा? 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा. ओके, और यहाँ से थीटा मुझे क्या मिलेगा? 2n पाई प्लस अल्फा. अब इस फॉर्मूले को लिखता हूँ मैं. यहाँ पे है 2n प्लस 1 पाई, सो ये हो गया ऑड पाई. ये क्या है? ऑड पाई माइनस अल्फ़ा. ऑड पाई माइनस अल्फ़ा, दिस इज ऑड 2n प्लस 1. अब ये थीटा 2n देखिए इवन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इवन पाई प्लस अल्फ़ा. सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इज ऑड पाई माइनस अल्फ़ा और इवन पाई प्लस अल्फ़ा. दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली एक ही फॉर्मूले में इस तरह से लिखा जा सकता है. अगर मैं n इवन लेता हूँ तो मुझे प्लस अल्फ़ा मिलना चाहिए, अगर मैं n ऑड लेता हूँ तो मुझे माइनस अल्फ़ा ही मिले. सपोज आई हैव टेक n इक्वल टू 2, तो थीटा क्या मिलेगा? 2 पाई माइनस 1 टू द पावर 2, तो क्या मिलेगा? 1. सो इट इज़ 2n पाई प्लस अल्फ़ा. सो इट इज़ इवन पाई प्लस अल्फ़ा. इस तरह से अगर मैं n 3 लेता हूँ तो मुझे थीटा क्या मिलेगा? 3 पाई माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, तो मुझे माइनस अल्फ़ा मिलेगा. सो इट इज़ ऑड पाई माइनस अल्फ़ा. सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा. इम्पॉर्टेंट फार्मूला है. नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा. नेक्स्ट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा. सो सेकेंड वन इज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, और इसका जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा. 2n पाई प्लस माइनस. तो ये कैसे आता है? देखिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कॉस सी माइनस कॉस डी. सो कॉस सी माइनस कॉस डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2. यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0. So this minus 2 is not equal to 0, therefore sin of theta plus alpha by 2 will equal to 0, or sin of theta minus alpha by 2 equal to 0. Again sin of theta equal to 0 means this sin of or this angle theta plus alpha by 2 equal to n pi. Again sin of theta equal to 0, so this angle theta minus alpha by 2 is also equal to n pi. तो यहाँ से मुझे थीटा मिलेगा 2n पाई माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से थीटा मिलेगा 2n पाई प्लस अल्फ़ा. सो इट इज़ 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा. सो लाइक दिस जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा. नाउ सी द नेक्स्ट फार्मूला, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा. तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा का जनरल सॉल्यूशन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस अल्फ़ा. जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा. तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे. सो इट इज़ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा.
सो ये साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 0. सो इट विल बी साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0. साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन बी. साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू 0. साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0. सो दिस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, n पाई, एंड मेरा थीटा बनेगा n पाई प्लस अल्फा. So therefore the general solution of equation tan theta equal to tan alpha is theta equal to n pi plus alpha. और उसके बाद में 3 इक्वेशन हैं, उन सभी के ट्रिग्नोमेट्रिक जो 3 इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. All these 3 trigonometric equations has the same general solution, that is theta equal to n pi plus minus alpha. For example उसमें का एक सॉल्व करके दिखाता हूँ. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर्स के लिए है स्पेशली. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा. सो इसका जनरल सोल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा. सो हियर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0. सो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 0. सो देयर इज वन स्पेशल फार्मूला फॉर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. फार्मूला ऐसा है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. सो दिस विल बी साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0. साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. सो इट इज आइदर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0 और साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0. So this angle sin of theta minus alpha equal to 0 if theta plus alpha equal to n pi, and here sin of theta minus alpha will be equal to 0 if this theta minus alpha equal to n pi. So here is theta will be equal to n pi plus alpha, theta will be equal to n pi plus alpha और यहाँ से theta मिलेगा n pi minus alpha. So therefore general solution of sin square theta equal to sin square alpha equal to theta equal to n pi plus minus alpha. Similarly you can prove the cos square theta equal to cos square alpha and tan square theta equal to tan square alpha का भी general solution theta equal to n pi plus minus alpha भी होता है. So here are the all the formulas, इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए. तो फिर से मैं आपको फर्स्ट टेबल दिखाता हूँ, उसके फॉर्मूले और इस सेकंड टेबल के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कीजिए. सो साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा n पाई होगा. कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा. टैन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा n पाई होगा. साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा 4n प्लस 1 पाई बाई 2. साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1 है तो थीटा 4n माइनस 1 पाई बाई 2. कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा 2n पाई. कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 है तो थीटा इज 2n प्लस 1 पाई. कॉट थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा बनेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2. साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा सेकेंड टेबल. साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा. कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा का जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. और ये लास्ट के 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा है जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. सो स्टूडेंट्स ऑल दीज फार्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाइल सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या क्या पॉइंट्स हमें इम्पॉर्टेंट हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हमने लेने चाहिए. सो हियर इज़ द पॉइंट्स टू रिमेंबर. These points to remember also very important while solving the trigonometric equation. So इसमें का first point देखिए, see the first point and in this it is given first point मैं पढ़ रहा हूँ. While solving the trigonometric equation, squaring of both sides of trigonometric equation should be avoided. While solving the trigonometric equation, squaring of both sides of trigonometric equation should be avoided. इफ़ नेसेसरी एज फार एज पॉसिबल, अगर नेसेसरी है तो चेक द ऑप्शंस. आपका आया हुआ आंसर से आप इक्वेशन को चेक कीजिए. चेक द सॉल्यूशंस ऑब्टेन. जो सॉल्यूशन आपको मिला है उससे आप इक्वेशन को चेक कर सकते हैं वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग और नॉट. तो ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल
अगर मेरे पास एक इक्वेशन है फॉर एग्जांपल cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट पॉइंट क्या समझा रहा है, स्क्वेयरिंग अवॉइड करनी चाहिए, स्क्वेयरिंग नहीं करनी चाहिए वो दोनों साइड्स की। तो उससे क्या होता है, अगर अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बाय स्क्वेयरिंग से इसको सॉल्व करता हूँ, तो अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो मुझे मिलेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, बीच में आएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, तो यहाँ से मुझे साइन 2 थीटा मिलेगा 0, तो 2 थीटा मिलेगा n पाई, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूँ, और थीटा क्या मिलेगा n पाई बाई 2। नाउ ये जनरल सॉल्यूशन है ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और इसको मैंने सॉल्व किया है बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब देखते हैं थीटा की वैल्यू मुझे क्या क्या मिलती है। n इक्वल टू 0 0 मिलेगा, n इक्वल टू 1 पाई बाई 2 मिलेगा, n इक्वल टू 2 2 गेट कैंसिल, पाई मिलेगा, n इक्वल टू 3 मिलेगा 3 पाई बाई 2। ओके, ऐसे वैल्यूज़ मुझे मिलेंगे। अब इनको चेक करते हैं ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं। ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। थीटा इक्वल टू 0 cos 0 1 sin 0 0 सेटिस्फाई होता है। cos पाई बाई 2 0 sin पाई बाई 2 1 0 प्लस 1 इज़ 1 सेटिस्फाई होता है। cos ऑफ पाई इज -1 sin ऑफ पाई 0 -1 इज इक्वल टू 1, तो इससे ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने स्क्वायर करके सॉल्व किया है। अब मेरी सेकंड मेथड देखिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1/2, हियर कोएफिशिएंट ऑफ cos थीटा इज 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा इज 1। आई विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय √2, सो cos थीटा 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, दोनों साइड को मैंने √2 से डिवाइड किया है। सो इट इज़ cos ऑफ पाई बाई 4, दिस इज साइन ऑफ पाई बाई 4, दिस इज cos ऑफ पाई बाई 4 1/√2 साइन ऑफ पाई बाई 4 cos 1/√2 cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बनेगा cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 एंड दिस 1/√2 इज ऑल्सो cos ऑफ पाई बाई 4। सो ये बनेगा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो उसका जनरल सॉल्यूशन है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है मेरा पाई बाई 4। अब थीटा बनेगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस दिस पाई बाई 4। अब यहाँ से जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे, प्लस साइन लेंगे तो मुझे मिलेगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और माइनस साइन लेंगे तो मुझे मिलेगा 2n पाई। अब इन दोनों इक्वेशन में कोई भी n आप सब्स्टिट्यूट करो, गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। n अब यहाँ से ये एंगल मुझे नहीं मिलेगा, पाई एंगल यहाँ से नहीं मिलेगा। देखिए आप कुछ भी n सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल नेवर गेट पाई, क्योंकि ये तो इवन पाई है और यहाँ पे क्या था, ऑड पाई था। यहाँ पे कोई पाई का कोएफिशिएंट कितना है 1। सो दिस इज़ द करेक्ट मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने अगर स्क्वेयरिंग अवॉइड करनी चाहिए, अगर स्क्वेयरिंग करने का काम भी पड़ा तो जो सॉल्यूशन हमको मिला है उससे हमको इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है उसको चेक करने का है। नाउ सी द सेकंड पॉइंट। क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है वाइल सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, आइदर फाइंडिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। सो सेकंड पॉइंट कहता है, व्हाट द सेकंड पॉइंट कहता है, नेवर कैंसल द टर्म कंटेनिंग अननोन एंगल्स विच इज़ इन द प्रोडक्ट। दोनों साइड की ऐसी टर्म जो प्रोडक्ट में है उसे कैंसल नहीं करनी चाहिए। दैट विल लूज द जेन्युइन सॉल्यूशन, उससे हमारा जेन्युइन सॉल्यूशन का लॉस होता है। व्हाई? अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। अगर मुझे सॉल्व करने का है sin x इक्वल टू सपोज tan x, सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, sin x इज इक्वल टू sin x इज इक्वल टू sin x, tan x को sin x बाय cos x लिख दिया, तो ये sin x कैंसल, फिर cos x इक्वल टू कितना मिला 1। अब ऐसा करने से आपका एक सॉल्यूशन का लॉस हुआ है, आपको एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ रॉन्ग मेथड टू सॉल्व। इसको हमको ऐसा सॉल्व करना चाहिए। राइट मेथड देखिए, sin x इज इक्वल टू sin x बाय cos x,
सो साइन एक्स इज इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे कैंसिल कब कर सकते हैं, कन्फर्म होना चाहिए साइन एक्स इज ऑल्सो मे बी इक्वल टू 0, साइन एक्स मे बी इक्वल टू 0। सो साइन एक्स 0 होगा तो दोनों साइड इक्वल होंगे, तो यहाँ पे कंसिडर कर लेना चाहिए पहले से ही साइन एक्स इक्वल टू 0। या फिर ऐसा कीजिए, तो यहाँ से आपको साइन एक्स कॉमन मिलेगा, कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो साइन एक्स इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू 1। यहाँ पे सिर्फ आपको cos x इक्वल टू 1 मिला था, यहाँ पे cos x इक्वल टू 1 भी मिला है, sin x इक्वल टू 0 भी मिला है। तो इसका सॉल्यूशन आपको लॉस होता था हियर x इज इक्वल टू व्हाट, n पाई। ओके, सो इस तरह से कोई भी टर्म अगर प्रोडक्ट में है, इसी इक्वेशन के लिए नहीं, एक एग्जांपल था, दिस इज़ वन टाइप ऑफ एग्जांपल। तो अगर यहाँ पे साइन एक्स है कोई ब्रैकेट है, अगर यहाँ पे साइन एक्स है कोई ब्रैकेट है, तो ऐसा कैंसल नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस इज सेकंड पॉइंट, टर्म विच इज़ इन प्रोडक्ट कंटेनिंग अननोन एंगल, उसे कैंसल मत करो। थर्ड पॉइंट देखिए, व्हाइल सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हाट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक। थर्ड में हमें दिया है, थर्ड पॉइंट, चेक द डिनोमिनेटर इज़ नॉट 0 एट एनी स्टेप व्हाइल सॉल्विंग। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब देखिए, कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था tan x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो sin x बाय cos x, सो sin x प्लस 1 बाय cos x इक्वल टू 2 cos x। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान में आना चाहिए कि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इस पे cos x शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 0। cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी जब भी हम पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट ध्यान में रखने का है, cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज इफ cos x इज 0, डिनोमिनेटर इज 0 एंड दिस टर्म विल नॉट बी डिफाइंड एंड देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। ये सॉल्यूशंस इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के नहीं हो सकते। cos x इक्वल टू 0 ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, यानी x इक्वल टू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ऐसे सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकते। सो स्टूडेंट्स, ये तीनों पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है और हमने पूरे फॉर्मूलेज डिस्कस किए हैं जनरल सॉल्यूशन के, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। All these formulas are very very important to find the general solution of trigonometric equations। तो इन सभी formulas को आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए and in the next lecture we will solve the important problems on the general solution of trigonometric equation. Bye. Thank you very much.